Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we were studying about the views on utilitarianism. In that अपन ने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा बाकी था अपने पास. जैसे कि क्या है utilitarianism क्या है, is a conceptualist ethical theory, meaning that it holds that acts are justified insofar as they produce a certain outcome. मतलब आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, राइट. एंड रिजल्ट जो भी आए, आपके एक्शंस का जो भी एंड रिजल्ट मिले उससे आपको ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए. दिस स्टेटमेंट अरोज्ड सम कंट्रोवर्सी विच इज़ वाई मिल टुक इट अ स्टेप फर्दर. अभी ये जो उसका स्टेटमेंट है बहुत से कंट्रोवर्सीज है, तो मिल ने आगे और बोला कि बाबा अभी कुछ कंसिड्रेशन है उसमें भी, लाइक ह्यूमन बीइंग इज़ अ अनसेटिस्फाइड मैन, राइट. उसका क्या है, एक डिमांड सेटिस्फाइड तो तुरंत दूसरी आ जाती है. इन अदर वर्ड्स, फ्री विल लीड एवरीवन टू मेक एक्शंस इंक्लाइंड ऑन देयर ओन हैप्पीनेस unless reason that it would improve the happiness of others, in which case the greater utility is being utilized. Then utilitarianism is a thought of by some of its activity to be a more developed and overreaching ethical theory of immanent belief in goodwill, and not just some default cognitive process of human, where Kant would agree that reason can only be used properly by goodwill. Mill would say that the only way to universal create fair laws and system would be to step back to the consequences, whereby Kant's ethical theories become based around the ultimate good utility. By this logic, the only valid way to describe what proper reason is would be to view the consequences of any action and weigh the good and bad, even if no surface the ethical reasoning seems to be indicate a different train of thought. Then higher and lower pleasure. See, Mill's major contribution to utilitarianism is this argument for the qualitative suppression of pleasure. See, प्लेजर क्या है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. अभी बेनेथन क्या बोलता है, प्लेजर हैप्पीनेस इक्वल रहता है, सेम रहता है. बट मिल क्या बोलता है, प्लेजर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाइक आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था. लाइक आप हमेशा पर्टिकुलर फ्लेवर खाते हो वही खाओगे, या आपका फ्रेंड नया फ्लेवर ट्राई कर रहा है तो वो खाना है, तो आप क्या बोलोगे. अगर आपने बस वो ट्राई कर रहा है नया फ्लेवर, इसलिए आपने भी नया फ्लेवर ले लिया और आपको पसंद नहीं आया, तो आपके मन में रुक रुक रहेगी ना, यू विल बी नॉट सो हैप्पी. खुशी मिलेगी बट इतनी नहीं. अगर वही आप पर्टिकुलर फ्लेवर खाओगे और वही आपको पसंद आया तो क्या है, तो आपकी खुशी डबल होती है. एंड ही इज सेइंग दैट कि बाबा इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग dissatisfied than a pig satisfied. Better to be scotted dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool or the pig is of different opinion, it is because they only know their own side of the question. This made me believe that our only ultimate end is happiness. Then अगर मैं आपको कुछ सवाल पूछूं कि बाबा डिफरेंट ऑफ क्वालिटी इन प्लेजर क्या है, आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा प्लेजर देते हो, तो क्या है, आप वही बोलोगे ना जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है. या फिर मैं आपको ऑप्शन दूँ, आइदर यू हैव अ जूस आइदर यू हैव अ कॉफ़ी, तो आप क्या करोगे. अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, आप कॉफ़ी के फ़ैन हो, तो आप क्या करोगे, आप कॉफ़ी पियोगे, राइट, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिल रही है. सो दैट वुड गिव यू मोर प्लेजर. He defines higher pleasure as mental, moral and aesthetic pleasure, and lower pleasure as being more sensational. See, he defines higher pleasure as mental, moral and aesthetic pleasure, and lower pleasure as being more sensational. He believes that higher pleasure should be seen as preferable to lower pleasure since they have a greater quality in virtue. He holds that pleasure gained in activity are of higher quality than those gained passively. Mill defines the difference between higher and lower form of pleasure with the principle that those who have experienced both turn to prefer one over the other. Then
फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर सोसाइटी में बच्चों को वो हॉपस्कॉच खेलना ज़्यादा पसंद है तो ये ओपेरा हाउस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये उसने एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द चैप्टर्स। Mill separated his explanation of utilitarianism into 5 different section। तो अभी मील ने क्या किया, उसका जो एक्सप्लेनेशन है ऑफ यूटिलिटैरिज्म का, he had divided into 5 section। The first one is general remark, second one is what utilitarianism is, of the ultimate sanction of the principle of utility, of what sort of proof the principle of utility is susceptible, and of the connection between justice and utility. See, in the general remark portion of his essay, he speaks how next to no progress has been made when it comes to judging what is right and what is wrong of morality, and if there is such a thing as moral instinct. See, in general remark portion of his essay, he speaks how next to no progress। अब इसमें एक ऐसे में बोल रहा है कि बाबा इसके आगे प्रोग्रेस नहीं बना सकते व्हेन इट कम्स टू जजिंग, जब अपन जज करते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग ऑफ मॉरलिटी। इफ देयर इज सच ए थिंग एज मॉरल इंस्टिंक्ट, अगर वैसा कुछ रहा तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मॉरल इंस्टिंक्ट। हाउएवर ही एग्रीज दैट इन जनरल आवर मॉरल फैकल्टी according to all those of its interprets who are entitled to the name of thinker supplies us only with the general principle of moral judgment। See, he agrees that in general, फिर in general वो एक statement बनाता है कि अपन अपनी moral faculty according to all those of its interpret who are entitled to the name of thinkers supplies us only with the general principle of moral judgment। In what utilitarianism is, he focused no longer on background information but utilitarianism itself। In what utilitarianism is, अब यहाँ पे वो बोलता है ये यूटिलिटरिज्म क्या है, ये वो फोकस पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में नहीं, बट वो यूटिलिटरिज्म क्या है खुद इसके बारे में बात करना है। He quotes utilitarianism as the greatest happiness principle। See, वो क्या कोट कर रहा है, ये यूटिलिटरिज्म क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। Defining this theory by saying that pleasure and no pain are the only inherent good things in the world, and expands on it by saying that actions are right in proportion as they turn to promote happiness, wrong as they turn to produce the reverse of happiness। See, अब वो थ्योरी कैसे डिफाइन कर रहा है कि बाबा जो खुशी है, प्लेजर एंड नो पेन, लाइक खुशी और गम कुछ भी नहीं, आर ओनली इनहेरिटेड गुड थिंग्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है पूरी दुनिया में, हर किसी को खुशी चाहिए, गम किसी को भी नहीं चाहिए, और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और ये आगे और क्या बोल रहा है, एक्शंस आर राइट इन प्रपोर्शन। तो फिर एक्शंस आप वैसे लो, उसी तरह से एक्शन लो जिससे आपको खुशी मिले, राइट। अगर आप रॉन्ग एक्शन करोगे, गलत चीज़ें करोगे, तो आपको आपकी खुशियाँ भी रिवर्स हो जाएगी। सही बात है ना। अगर आपने गलत काम किया, अगर किसी को आपने मारा, गुस्से में किसी को आपने मारा, उस वक्त तो आपको मैंने उसको मार के आया हूँ ऐसे बोलोगे, पर जब शांत हो जाओगे तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या है, उसी तरह रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है। बाय हैप्पीनेस इज इंटेंडेड प्लेजर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन, बाय अनहैप्पीनेस पेन एंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्लेजर। सी, बाय हैप्पीनेस अगर खुश रहोगे तो अपने आप खुशियाँ मिलेगी और दर्द नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। बाय अनहैप्पीनेस अगर आप दुखी रहोगे तो आपको तकलीफ ही रहेगी, और क्या है, आपका प्लेजर भी लिमिटेशन में आ जाएगा। सही बात है ना। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखोगे तो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दिखेगी, और आप खुश रहोगे तो अगर तकलीफ भी रही उसमें भी आप अच्छे से उसका सामना करके खुशी खुशी उस तकलीफ़ को भी सहन कर लोगे, तो वो तकलीफ़ ही नहीं रहेगी।
बट वही अगर आप दुखी रहोगे तो आपको और दर्द होगा और दुखी होते जाओगे आप, और आपके आसपास भी माहौल भी आप वैसे ही बना लोगे। लेकिन कुछ अच्छा भी दिखता रहेगा तो आप उसमें भी दुखी दर्द ही निकाल दोगे। He views it not as an animalistic concept because he sees seeking out pleasure as a way of using our higher facilities. See, he views it not as an animalistic concept because he seeks seeking out pleasure as way of using our higher faculties. He also says in this chapter that the happiness principle is based not exclusive on the individual but mainly on the community. See, उसके बाद वो क्या बोल रहा है इस चैप्टर में, क्या है हैप्पीनेस, ये क्या है इज बेस्ड नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ द, मतलब हैप्पीनेस क्या है, ये एक प्रिंसिपल है। और ये आप इंडिविजुअल से अलग नहीं कर सकते, ना ही किसी कम्युनिटी से अलग कर सकते हो, राइट। अगर इंडिविजुअल है तो हैप्पीनेस भी रहेगी, कम्युनिटी में रह रहे हो तो कम्युनिटी में भी खुशी का ध्यान रखना ही है आपको। मिल also defend the idea of a strong utilitarian conscience, that is a strong feeling of obligation to the general happiness. See, Mill also defends the idea of a strong utilitarianism consciousness, that is strong feeling of obligation to general happiness. He argued that humans have a desire to be happy and that their desire causes us to want to be in unity with other humans. अभी इंसान को क्या चाहिए, हर इंसान खुश रहना चाहिए, खुश रहने के ट्राई करता है और खुशी चाहिए रहती है, राइट। किसी को गम चाहिए क्या दुनिया में, किसी को भी गम नहीं चाहिए, तो इंसान को हमेशा खुशी ही चाहिए। तो उस खुशी के लिए क्या करता है, वो सोसाइटी में रहता है, राइट। सोसाइटी में रह के क्या करता है, और हर लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करता है ताकि वो यूनिटी सबके साथ एकता बनाए रखे एंड ऑल। दिस कॉजेस अस टू केयर अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एज वेल एज द हैप्पीनेस ऑफ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। सी, दिस कॉजेस अस, अभी इसकी वजह से क्या होता है, दूसरों को भी वो खुश देखना ट्राई करता है, दूसरों को भी खुश रहने देता है। क्यों ऐसे? सी, अभी इंसान अकेला तो नहीं रह सकता, अकेला रहेगा तो दुखी रहेगा, तो उसका कोई ना कोई तो बात करने के लिए चाहिए ही रहता है। तो इसके लिए क्या करता है, वो खुश रहता है, आस पड़ोस वालों के साथ बात करता है, राइट। तो वो क्या है, तो वो लोग क्या है, एक यूनिटी बना के रहते हैं, एक दूसरों का साथ देते हैं। तो ऐसे करते करते क्या होता है, वो धीरे धीरे दूसरों की खुशियाँ के बारे में भी सोचने लगता है। अरे यार नहीं, अच्छा अड़ोस पड़ोस में ही देख लो आप, लाइक व्हेन आई वाज अ किड ना, मैंने ये बहुत देखा। हमारे सामने एक आंटी रहने के लिंगायत थे, बहुत अच्छे थे वो आंटी ना। मेरे को हमारे घर का खाना नहीं पसंद आता था, बट उनके घर का खाना पसंद आता था, और वो जब भी कुछ भी बनाते थे मेरे को दे ही देते थे रोज़ भी। और उनकी बेटी थी मेरे से 1 साल बड़ी थी, उसको हमारे घर का खाना पसंद था। तो बहुत स्पेशली दिस उपमा आपण उपीट म्हणतो ना ते, तिला आमच्या घरातलं आवडायचं आणि मला तिच्या घरातलं। तो उनके घर पे जब भी उपमा बनता था वो आंटी मेरे लिए भेजते थे, और हमारे घर पे जब भी बनता था हम लोग उसको देते थे। तो क्या है, अपन एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं ना। दिस causes us to care about the happiness of other as well as the happiness of complete stranger. But this desire also causes us to experience pain when we pursue harm to other people. See, but this desire also causes us to experience, but see, अगर अपन ने उन्हीं कम्युनिटी में जो रहते हैं उनको दुख पहुंचाया तो अपने को भी, खुद को भी दुख होगा। सी, अगर सपोज मुझे पसंद है और आंटी बना रहे हैं और आंटी ने मुझे नहीं दिया, तो मुझे क्या होगा, मुझे दुख होगा ना, यार बनाने के बाद भी आंटी ने मुझे नहीं दिया, तो क्या है, पेन होता है ना। सेम थिंग, he believes in internal sanction that makes us experience guilt and appropriate our society. मिल क्या करता है, मिल believes in internal sanction that makes us guilt and appropriate action, मतलब अंदर से दिल से होना चाहिए जो भी हो रहा है। अगर सब कुछ दिल से होगा तो आपको खुशी भी अच्छे से दिल से मिलेगी। This internal sanction make us want to do good because we do not want to feel guilty for our actions. See, अभी जो इंटरनल फीलिंग है ये क्या करते हैं, ये अच्छे से अगर अपनी इंटरनल फीलिंग है कि पापा अपन अच्छे से काम करें
और अगर अपन वो काम अच्छे से करते हैं तो क्या है, तो अपने को गिल्ट फीलिंग भी नहीं आता, राइट। और अपन अपने मन की बात सुन के मन का जैसा काम करेंगे तो क्या है, अपने को फीलिंग भी अच्छा आएगा ना कि इवन आई एम, अरे मैं मेरे हिसाब से काम कर रही हूँ, तो एक अच्छा फीलिंग आता है, एक फील गुड फैक्टर रहता है। हैप्पीनेस इज अवर अल्टीमेट एंड बिकॉज इट इज़ अवर ड्यूटी। सी, हैप्पीनेस क्या है, सबसे बढ़ के है। क्यों? क्योंकि ये अपना ड्यूटी है ना, लाइक अपन भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे, ये अपना ड्यूटी है ना। ही आर्ग्यूज दैट वी डू नॉट नीड टू बी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड by the concern of people's happiness. See, he argues that we do not need to be constantly motivated. खुश रहने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन चाहिए क्या, कि बाबा और ये तो ऐसे कर तुझे खुशी मिलेगी? नहीं, भले ही कोई आपको गाइड भी कर दे, बट जो खुशी आप खुद के मन से करोगे, जो काम खुद के मन से करोगे, उसमें जो खुशी मिलेगी वो अलग ही रहेगी। बिकॉज द मोर ऑफ द एक्शंस डन बाय पीपल आर डन आउट ऑफ गुड इंटेंशन and the good of the world is made up of the good of the people. See, because क्या है, the most of the actions done by people. See, बहुत से एक्शन क्या है जो लोग करते हैं वो सही इंटेंशन से करते हैं, और अगर हर काम आप सही इंटेंशन से करोगे तो बट ऑब्वियसली आपके आसपास भी अच्छे पीपल लोग रहेंगे, और आप खुद भी एक अच्छा इंसान बन जाओगे ना। क्यों? आपके आजू बाजू सब कुछ अच्छा हो रहा है, सो यू विल गेट दैट फील गुड फैक्टर। In Mill's fourth chapter of what sort of proof the principle of utility is suspectable, he speaks of what proof of utility are affected. See, in Mill's fourth chapter, see, Mill का जो fourth chapter fourth point है उसके अंदर क्या है, it is asking of क्या प्रूफ है the principle of utility is suspectable, क्या प्रूफ है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है इज सस्पेक्टेबल। ही स्पीक्स ऑफ व्हाट प्रूफ ऑफ यूटिलिटी आर अफेक्टेड। सी, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ही स्पीक्स ऑफ व्हाट प्रूफ ऑफ यूटिलिटी आर अफेक्टेड। ही स्टार्ट्स दिस चैप्टर ऑफ बाइंग सेइंग दैट ऑल ऑफ दिस क्लेम कैन नॉट बी बैक्ड अप बाय रीजनिंग। सी, क्या प्रूफ है कि यूटिलिटी अफेक्टेड है, ये कैसे बोलता है। ही स्टार्ट्स दिस चैप्टर बाय सेइंग दैट जो भी आपके क्लेम है इट कैन बी बैक्ड अप बाय रीजनिंग। ये कुछ भी रीज़न देख के आप गलत काम नहीं कर सकते। ही क्लेम्स दैट द ओनली प्रूफ दैट समथिंग ब्रिंग्स वन प्लेजर इज इफ समवन फाइंड इट्स प्लेजरेबल। सी, ही क्लेम्स दैट सिर्फ एक प्रूफ है जिससे आपको खुशी मिल सकती है कि बाबा आप खुद से खुश रहो और दूसरों को भी खुशी मिले। लाइक आप भी खुश रहो, आप ऐसा काम करो जिससे आपको खुद को भी खुशी मिले और दूसरों को भी खुशी मिले। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट हाउ मॉरलिटी इज द बेसिक वे टू अचीव हैप्पीनेस। आगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉरलिटी के बारे में। मॉरलिटी यानी मॉरल साइंस वगैरह आपने स्कूल में पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको बोलते हैं सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है एंड ऑल। तो वो मील यहाँ पे मॉरलिटी के बारे में बात कर रहा है। अगर आप सही तरीके से काम करो तो आपको हैप्पीनेस ऐसे ही मिल जाएगी। ही ऑल्सो डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट यूटिलिटरिज्म इज बेनिफिशियल फॉर वर्च्यू। इस चैप्टर में वो ये भी बोल रहा है ये जो यूटिलिटरिज्म है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर वर्च्यू ऑल्सो। ही सेज दैट इट मेंटेन्स नॉट ओनली दैट वर्च्यू इज टू बी डिजायर्ड बट दैट इट इज टू बी desired disinterestedly for itself. See, he says that it maintains not only that virtue, ये वही virtue maintain नहीं करता जो desired है, but that it is to be desired uninterestedly for itself. In this final chapter, he looks at the connection between utilitarianism and justice. See, final chapter में क्या दिखता है, he looks at the connection between the utilitarianism and justice. He contemplates the question of whether justice is something distinct from utility or not. See, he contemplates, अभी वो क्वेश्चन पूछता है कि बाबा ये जस्टिस अलग है क्या यूटिलिटी से या नहीं। अपन जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस और यूटिलिटी दोनों अलग अलग है क्या, हो भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं। ही रीजन्स दिस क्वेश्चन इन सेवरल डिफरेंट वे। सी, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या करता है, वो अलग अलग तरीके से दे रहा है।
Mm, he reasons this question in several different ways and finally comes to the conclusion that in certain cases justice is essential for utility. See, अभी वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करता है और फाइनली वो एक कंक्लूजन में क्या आता है, दैट इन सर्टन केसेस जस्टिस क्या है, ज़रूरी है यूटिलिटी के लिए. जस्टिस इज इसेंशियल फॉर यूटिलिटी, बट इन अदर सोशल ड्यूटी इज़ फार इम्पोर्टेंट देन जस्टिस. सी, जस्टिस ज़रूरी है, उसमें कोई ना नहीं है. यूटिलिटी से अगर काम करना है, अच्छे से काम करना है तो जस्टिस ज़रूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट सोशल जस्टिस इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन जस्टिस, सोशल ड्यूटी सॉरी. बट सोशल ड्यूटी, आपकी जो सोशल ड्यूटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये जस्टिस से बढ़ के भी है. इवन इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द जस्टिस. Mill believes that justice must give away to some other moral principle. See, Mill क्या बिलीव करता है? Mill believes that justice must give away to some other moral principle, but that what is just in ordinary cases is by reasoning of that other principle, not just in the particular case. See, justice must be given in other way, moral principle, but किस तरह से, इन ऑर्डिनरी केसेस, इन जस्ट इन ऑर्डिनरी केसेस, बट प्रॉपर प्रिंसिपल्स के साथ, नॉट विथ अ पर्टिकुलर केस. मतलब जो भी करना है आप प्रॉपर प्रिंसिपल्स के साथ करो. बस किसी का सुन के अरे पिछली बार ऐसे हुआ था बोल के इस बार भी वैसे ही होगा, ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते आप. ऐसे अज्यूम नहीं करना है. आपको जो भी करना है यू शुड डू इट इन अ प्रॉपर वे विथ द प्रॉपर प्रिंसिपल्स. द qualitative account of happiness that Mill advocates thus sheds light on the account presented on liberty. See, अब ये जो क्वालिटेटिव हैप्पीनेस जिसके बारे में मील बात कर रहा है वो किस पे फोकस करता है? इट फोकस ऑन लिबर्टी ऑल्सो. मतलब यहाँ पे लिबर्टी के बारे में भी वो बात कर रहा है. As is suggest in that text, utility is to be conceived in relation to humanity as a progressive being which includes the development and exercise of rational capacity as we strives to achieve a higher mode of existence. See, as is suggested in that text, ऐसे जैसे कि उसने टेक्स्ट में बात किया है, यूटिलिटी क्या है, इज कंसीव्ड इन रिलेशन टू ह्यूमैनिटी. यूटिलिटी इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमैनिटी. हाँ, और किस हिसाब से काम करते हो उसमें आपका डेवलपमेंट होता है, आपकी कैपेसिटी लाइक कितना है, हायर कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो, इन सब पे डिपेंड रहता है यहाँ पे. द रिजेक्शन ऑफ सेंसरशिप एंड पार्टनरलिज्म इज इंटेंडेड to provide the necessary social condition for the achievement of knowledge and the greatest ability for the greatest number of develop and exercise their deliberative and rational capacity. See, the rejection of censorship and partnerism. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन सेंसरशिप एंड पार्टनरिज्म, ये क्या है, इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड द नेसेसरी सोशल कंडीशन. इससे अपने को एक सोशल कंडीशन के बारे में पता चलता है जिससे अपने को नॉलेज मिलता है एंड अपन अच्छे से विद ग्रेटर एबिलिटी वी डू नंबर ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइज द डेलिबरेटिव एंड रैशनल कैपेसिटीज. मील रीडिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एज. सी, मील क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो हैप्पीनेस का डेफिनेशन फिर से थोड़ा सा रीडिफाइन कर रहे हैं. द अल्टीमेट एंड for the sake of which all other things are desirable, whether we are concerning our own good or that of other people. See, the ultimate end for the sake of all other things are desirable. See, ultimate end क्या है, सबकी अच्छे के लिए काम करना, whether अपना खुद का देखो या दूसरों का रहने दो, is an existence as free as possible from pain and rich as possible in enjoyment. See, अभी एंड रिजल्ट कैसा होना चाहिए, भले वो खुद के लिए रहने दो या दूसरों के लिए रहने दो, बिना किसी दर्द के, विदाउट एनी पेन इट शुड बी, और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलना चाहिए, लाइक यू शुड एन्जॉय दैट. ही फर्मली बिलीव्ड दैट मॉरल रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस कुड बी रेफर्ड टू प्रमोटिंग हैप्पीनेस विच कनेक्ट टू हैव अ नोबल कैरेक्टर. सी, ही फर्मली बिलीव्ड दैट moral rules and obligations could be referred to promoting happiness. See,
रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस बनाओ जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, जिससे आप कनेक्ट हो टू द नोबल कैरेक्टर. वाइल मील इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एक्ट और रूल यूटेरियम. सी, जबकि मील क्या है? मील इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एक्ट और रूल यूटेरिज्म. What is meant by act utilitarianism and rule utilitarianism? It is unintelligible to introduce term of art without defining them. See, it is unintelligible to introduce. ये introduce to the term of art without defining them. He is minimizing utilitarianism, which affirms that it would be desirable to maximize happiness for the greater number, but not that we are not morally required to do so. See, it is a intelligent, जो अपने को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक आर्ट है विदाउट डिफाइनिंग, लाइक कितना यूटिलाइज करना है ये नहीं है, बट इतना अच्छे से यूटिलाइज करो कि आपको खुद को खुशी मिले, राइट. फिर उसके लिए क्या है, बट मॉरली गलत जाके खुशी नहीं मिलनी चाहिए. हर तरीके से अच्छे से काम करो ताकि आपको अच्छे से हर जगह से खुशी मिले. So we have ended our third chapter here. In next lecture, we'll start with the fourth chapter, that is about the Karl Marx. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.